In the year 1976, month of July, the writer has set sail from the seaport of Plymouth in England. That means उन्होंने अपनी जो जर्नी है, it has been started from England. England में एक जगह है Plymouth. His wife Mary and his 7-year-old daughter Sue and his 6-year-old son John, they were also with him. The basic background of the writer, that is, he is a businessman and he has been dreaming of sailing on this sea route for the past 16 years. For this long journey, the writer had built for himself a huge boat that has 23 meters length, and the name of the boat was Wave Walker. It looked like a ship. The writer hoped to complete his journey round the world in 3 years. It was a journey of total 2,55,000 kilometer journey, which was divided in 2 parts. The first phase of the journey was about 1,05,000 kilometer. It was up to South Africa seaport of Cape Town. It passed off very pleasantly. Here, the writer took with him 2 sailors named Larry and Herb. Now, as I said, the journey was divided into 2 parts. The total length of the journey was 2,55,000 kilometers, जिसमें से 1,05,000 का जो सफ़र था वो बहुत ही प्लेजेंटली निकल चुका था. The first part of the journey, right? And they sailed from the west coast of Africa and they reached Cape Town, जहाँ उनके 1,05,000 का जो डिस्टेंस है वो कंप्लीट होता है. उसके बाद का जो डिस्टेंस था 1,50,000, that was the second part of their journey, and they were about to enter the world's roughest sea, and that sea was the Southern Indian Ocean. Here they took 2 sailors to help them, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही rough sea था. They wanted some professionals to be with them, right? So the writer took with him 2 sailors. One was Larry Vigil, he was an American, and the other was Herb Siegler, he was a Swiss. It was 2 days after they had started from Cape Town. Strong winds began to blow. They kept blowing continuously for the next few weeks. The writer was not worried about the strong winds. What worried him was the size of the waves. जो लहरें थी वो बहुत ऊंची ऊंची थी. Winds की कोई टेंशन नहीं थी, चाहे कितनी भी तेज़ हवाएं चलें. But the waves, they went as high as the main mast of their ship. Ship के ऊपर एक मास्ट, लंबा सा कपड़े से बनाया हुआ एक मास्ट होता है जो कि 15 मीटर जितना लंबा था. तो वो देख रहे थे कि जो वेव्स हैं वो 15 मीटर की ऊंची आ रही हैं. On December 25th, they were 3,500 kilometers east of Cape Town. The weather was terribly bad. Yet they had a Christmas tree and enjoyed Christmas in a wonderful way. They enjoyed the New Year's Day also in a very spirited manner. They hoped that the weather would change soon. So उन्होंने Christmas celebrate किया, New Year भी celebrate किया ship पे ही, right? छोटे बोट पे. उन्हें उम्मीद थी कि शायद नए साल में वेदर बदल जाए, लेकिन वेदर बदला, बट बद से बदतर होने के लिए बदला, वर्स्ट से वर्स्ट होने के लिए चेंज हुआ. On January 2, there were huge waves. The ship rose to the top of each wave. They had put up only a small sail storm jib in front of their ship. Jib क्या होता है? Heavy waves को टकराने के लिए जिब होता है जो कि पूरा शॉक एब्जॉर्ब करता है. तो ऐसा उनके पास एक छोटा सा ही जिब था. द स्क्रीमिंग साउंड, जो हवा की तेज़ हवाओं की जो आवाज़ें होती हैं, दैट वॉज पेनफुल टू द ईयर्स. इन ऑर्डर टू स्लो डाउन द स्पीड, जिससे कि शिप की स्पीड थोड़ी कम हो जाए, उन्होंने भारी भरकम जो स्टॉर्म जिब है वो शिप के आगे से निकाल कर नीचे पानी में डाल दिया. दे सिक्योर्ड एवरीथिंग टाइटली विद द रोप, रस्सियों से सब कुछ बांध दिया. दे अटैच्ड लाइफ लाइन्स, यानी रस्सियों से खुद को भी बांध लिया, जो लाइफ सेविंग बोट्स होती हैं उनको भी अच्छे से कस के बांध लिया. देन दे पुट ऑन देयर ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स, उन्होंने लाइफ जैकेट्स पहन के पूरी तैयारी कर ली. एट अबाउट 6 PM
सब कुछ खामोश हो गया, हवा चलनी बंद हो गई, राइट। द विंड स्टॉप ब्लोइंग एंड द स्काई ग्रू डार्क। ऐसा लग रहा था कि मानो तेज़ हवा का एक ज़ोर से गुर्राने की आवाज़ आ रही हो। उन्होंने देखा अ ह्यूज क्लाउड वॉज सीन एट द बैक ऑफ द शिप। बादलों में एक बहुत काले बादल उनका पीछा कर रहे हैं, बट असल में वो काले बादल नहीं थे, वो एक इतनी ऊंची पानी की लहर थी जो ऑलमोस्ट उनकी शिप से डबल थी। मतलब जो 15 मीटर की पहले वेव्स आ रही थी, अब वो 30 मीटर की वेव थी जो कि परफेक्टली वर्टिकल थी, यानी सीधा उनके बोट पर आके गिरने वाली थी। द रोर चेंज्ड इनटू अ थंडर। द राइटर थॉट दैट देयर शिप वुड राइड ओवर द वेव। राइटर को लगा वो निकल जाएंगे इसमें से, बट देयर वॉज अ ड्रेडफुल एक्सप्लोजन दैट शूक द डेक। पर जैसे ही वो लहरें पानी पर पड़ी, उसके साथ साथ बिजली भी उनके शिप पर गिरी। द राइटर्स हेड, जिसके झटके से राइटर का सिर जो है वो किसी चीज़ से, स्टीयरिंग व्हील जो होता है शिप के, उससे टकरा गया और वो बिल्कुल दूसरी तरफ फेंका गया। वो जानते थे दैट ही वॉज सिंकिंग, वो डूबने वाले हैं। ही एक्सेप्टेड, वो ये मान चुके थे कि उनका अब अंत नज़दीक आ गया है। ही वॉज लूजिंग हिज कॉन्शियसनेस एंड ही फेल्ट क्वाइट पीसफुल। बट देन अचानक ही फाउंड हिमसेल्फ his head coming out of the water and he saw his boat few meters away। और वो देख रहे थे कि उनकी बोट जो है इट वॉज टर्निंग, बिल्कुल पानी में डूब रही है। उनका जो मास्ट था, जो सीधा 15 मीटर का जो खंभा था, वो ऑलमोस्ट अब हॉरिजॉन्टल हो चुका था। उसके बाद एक और वेव आई जिसके झटके से वो मास्ट फिर से अपने आप खड़ा हो गया झटके से। द राइटर्स लाइफलाइन रोप वॉज स्टिल टाइड टू द शिप